Hey guys, welcome back. Today we are starting with Abiding Values chapter 8. Previous video you can find in my channel chapter 6, and the chapter 7 is cut from our syllabus. So I'll not make the video of it. Class 8th chapter 8, Upholding Traditions. So this is a really interesting one. So directly let's get into it. So I'm keeping my phone here and I'm going to start from my book only. Traditions are beliefs, customs. So what I'm doing, how I'm explaining is I'm reading and I'm going to say your Hindi meaning of it. Okay. Traditions are beliefs, customs and social practices that withstand the test of time. ये तो समझ में ही आ रहा होगा हमारा कॉन्सेप्ट आपको. And are the true legacy of our culture. Traditions mirror the collective proven wisdom of our ancestors who handed us down the best that they had learned and observed in their lifetimes. Okay, lifetimes, and who handed us down the best that they have learned and observed in their lifetimes, so that we may have a better, more fruitful existence. I would have turned out the way I was if I didn't have all those old-fashioned values to rebel against. So ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट. ओके, और आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही समझ में आ जाता है. हमारे इसमें सिर्फ ये बात की गई है हमारे कॉन्सेप्ट में कि ये जो ओल्ड फैशन हम कहते हैं ना हमारे न्यू फैशन में, तो ओल्ड इज़ गोल्ड. Old is gold. This is which I just really love. And my sister also says me Gigi. So I just love because old is gold. Man. So now let's come to the overview. तो यहाँ पर पूरा ओवरव्यू दिया गया है आपको पूरे चैप्टर का. इससे अच्छे से if you have no time, so just read this overview and concept, you would be clearing the whole chapter. ठीक है. R is an ancient cultivation that served as a cradle of human knowledge and refined it thousands of years when most of the world was peopled with savages who lived assuage only their very basic hungers. ठीक है. The wisdom of the forefather was handed down through, ठीक है, generations in the hope that we could have certain guidelines to social conduct. ठीक है. I hope you're getting this. That would elevate our lives and lead us morality and abundance values of ethic behavior in us. As also the generations to come, we are but trustees. We are but trustees of these age-old values and wisdom. तो बेसिकली इसमें भी यही कह रहा है जो ओल्ड होते हैं ना, उनमें बहुत कह सकते हैं हम ये बात कि they have a good manners. They explain us. Now let's straight only go to this. The traditions we should adopt and promote. ये ट्रेडिशंस जो हमें एक्सेप्ट भी करने चाहिए, अडॉप्ट भी करने चाहिए और हमें प्रमोट भी करने चाहिए. ये ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये वाला, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, स्पेशली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. तो पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं एंड पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं.
love and affection for your sibling. Like, I can give a straight example for it. हमें उन्हें अपना लव भी दिखाना चाहिए और अफेक्शंस भी दिखाने चाहिए हमारे सिबलिंग्स को. लाइक मेरी नित्या, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बट वो अभी छोटी है तो मेरे साथ वो कुछ भी शेयर नहीं करती है. मुझे बुरा लगता है बट इतना भी नहीं लगता. सो now let's continue on this page. Respect for teachers. हमेशा हमें हमारी रिस्पेक्ट टीचर्स को करना चाहिए. Devotions to maker of all your universe. यूनिवर्स किसने बनाई है? वन, सबका मालिक एक है. तो डिवोशन ऑफ मेकिंग द होल यूनिवर्स, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महादेव जी. ठीक है. कंपैशन ऑफ सिक, ऑफ द सिक, इन्फर्म, फिजिकल डिसेबल्ड. ठीक है. मतलब अगर कोई सिक है आपके सामने, लाइक मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो मेरे फ्रेंड्स आर हेल्पिंग मी एट दैट मोमेंट, एंड व्हेन दे हैव एनी प्रॉब्लम आई हेल्प देम एट द मोमेंट. एंड हमें फिजिकली भी कभी कभी हेल्प कर देनी चाहिए, मेंटली भी कर देना चाहिए. ठीक है. कंपैशन फॉर ऑल क्रिएचर्स दैट coexist with us on this planet. Gratitude for plants and trees that make life possible. अरे सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि if plants are not there, how would you survive? So grow more and more plants, more and more. If you plant, okay, I can give you a very good example of it. If you have your birthdays, ठीक है, तो उस बर्थडे पर ना आप केक भी मंगवाओ और एक ना प्लांट भी लगाओ, सो दैट आपको फिर ऑक्सीजन. या फिर मैंने मेरे बर्थडे पर स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो किया था, और अभी जो अभी कच्ची स्ट्रॉबेरीज थी वो रेड होने जा रही हैं. सो इट्स रियली गुड थिंग. ओके, यू जस्ट प्लांट इट एंड यू जस्ट गिव द ऑक्सीजन, बट you should grow more and more trees. And if you can't grow, you just don't cut the trees. This is the humble respect, humble request. Don't do this thing, never ever. ठीक है. अगर आप बचा नहीं सकते, लगा नहीं सकते, तो बचाइए उन्हें. ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर द फूड दैट सस्टेन्स अस. अच्छा, दाल चावल या फिर रोटी सब्जी वी डोंट लाइक एक्चुअली. इवन लौकी हमें पसंद नहीं है. इफ़ मामा ने बना दिया लौकी, तो फिर आप नहीं खाते हो, आप उस खाने को ठुकरा देते हो, राइट? ऐसा कभी मत करना. कॉन्सर्न फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन काइंड, रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर. हमें हमारी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड मैनुअल लेबर जो लेबर होती है, हम उसे सोचते गरीब हैं यार, ये तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम बहुत गरीब इंसान हैं, हम नहीं करेंगे इनसे बात. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. हमें सारे रिलीजन्स और सारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. इफ़ आई एम हिंदू, आई वुड से ओह ही इज़ मुस्लिम, शी इज़ eating the fish. Oh my God, I can't just imagine how they are eating. So let me tell, we should not do like this. We should respect, right? हम कुछ भी करते हैं, उनका कल्चर है वो, ठीक है, और उनको वो फूड है यार. और अगर ज़्यादा फिशेस हो जाएंगी हमारे लेक्स में, तो हम पानी क्या पियेंगे? इफ़ देर आर फिशेस, वी कांट ड्रिंक दैट वाटर. इफ देर आर नो फिशेस एंड दे आर जस्ट वाटर इज क्लीन, वी कैन जस्ट बॉयल एंड हैव इट. ओके, सो आई स्पीक मच. क्वेस्ट ऑफ पीस एंड एमिटी विद ऑल पीपल्स. हमें आराम से, शांति से बोलना चाहिए हर किसी से, कोई भी बड़ा छोटा हो उससे भी. इधर हम अगर बड़े होते हैं और छोटा होता है ना, तो हमारे हाँ इधर आ, क्या कह रहे थे तुम, इधर आओ, ऐसे बात कर देते हैं. नो, ठीक है. प्रैक्टिसिंग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ज़्यादा झूठ ना बोलें और सच बोलें. ठीक है. प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स ब्रदरहुड. भाई मारा कूटा मत करा करो, स्पेशली बॉयज़ सबसे ज़्यादा मारा कूटी करते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस.
इट्स नॉट गुड एक्चुअली. ठीक है. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और कलर. लाइक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें कलर्स में था कि ये हम वाइट पीपल हैं, तुम ब्लैक पीपल हो. तो अब ये जो वाइट पीपल हैं, इन्हें हमने कैसे धक्का, ब्लैक ने वाइट को कैसे धक्का देके बाहर निकाला हमारे इंडिया से. ठीक है. तो ब्लैक एंड वाइट का जैसे वो पहले होता था ना, जस्ट स्टॉप डूइंग इट. बॉय एंड गर्ल, ओ माई गॉड, OMG, it's really, it's going a lot now also. Shunning greed, avarice, covetousness and falsehood. Please don't do it. Okay, moral uprightness. ठीक है. moral uprightness, hard work, ये हमें करने चाहिए. हार्ड वर्क वी शुड डू. ठीक है. हमें प्रमोट करना चाहिए हमारे ब्रदरहुड को, एमिटी को, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. हमारा अगर हम कोई बीमार है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. हमारे मोरल वैल्यूज़ को हमें बढ़ाना चाहिए. हमें हार्ड वर्क, पेशेंस से रहना चाहिए. और हमें हर किसी को फॉरगिव, माफ़ करके तो देखो कितना अच्छा लगता है अंदर से, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को हम नहीं कर पाते हैं माफ़. बट यार प्लीज़ प्रैक्टिस डूइंग फॉरगिवनेस इज़ रियली गुड. हमें हमारी कंट्री से बहुत प्यार है एंड हम उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं. राइट. लव एंड रिस्पेक्ट फॉर कंट्री. ओके. प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. हाँ, अंदर से हमारी अगर आत्मा साफ है और बॉडी क्लीन है, you are the, what to say, productive in everything you are. ठीक है. शनिंग मटेरियलिज्म, तो ये यहाँ पर हमारा ना इतना कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. इतना वी हैव कंप्लीटेड. अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब वो है ये ट्रेडिशंस वी शुड abandon. So देखो, now let's begin with the very first point. Okay. Subservience of women gender discrimination. कुछ लोग वुमेन एंड बॉयज़ में बहुत भेदभाव करते हैं. यही बात आ गई. डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज को हमें स्टॉप करना चाहिए. वुमेन के उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. और विडो की रीमैरिज करवा दो यार. ऐसा है कि वो उसको तो बिल्कुल कुछ और ही समझते हैं विडोज़ को. ठीक है. सती सिस्टम, फीमेल इनफैक्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इवेंट्स, पॉलीगैमी एंड एवरीथिंग. ओ माय गॉड, प्लीज़ स्टॉप दिस. विडो की रीमैरिज करवाएं, चाइल्ड मैरिज ना करवाएं. प्लीज़ यार, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए. हमारी जनरेशन आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहे, यही मेरी कामना है. एंड दिस चैप्टर वाज वेरी गुड, अपहोल्डिंग ट्रेडिशंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.